everyone. So, if I have to ask you what's that one thing which you are missing in this lockdown, what would you say? Well, for me, it's traveling, and that's the very reason I'm wearing my Musafir earrings today. And that's the only way to show it off, which I just did. So, moving on with our show, today we have someone who started his career as a celebrity fitness instructor but went on to become an actor. Well, that itself sounds very interesting. So, let's welcome Vikrant Anand online and get to know about his life and his journey. Okay, so hello Ankush, hello Pradeep, thanks for joining. We just hope that we connect with Vikrant soon so that we can start the show. And I hope that you all are doing well. You are having a great weekend. We just started, and the only thing I can say is that you are enjoying wherever you are, at home or at your workplace, wherever you are. Yes, hello to all, and I think Vikrant hasn't got the notification, which is generally the scenario in most of the guest cases. I hope we will see that soon. Hello Prakash ji, hello. What's that Insta handle? KURST. Lots of love from Jaipur. Thank you so much. And I truly appreciate that. Hello Bharti, hello Ansh, hello everybody who are joining. Hello Ankit. Okay, hello to all. Well, I think our guest hasn't seen the notification yet, but we can still talk. So hello to rest of the people. I'm just trying to take the names so that many people say आपने हमारा नाम नहीं लिया and all that. I'm good. What's your name? KURST9. I don't know what does that mean. So I'm really good. Thank you for asking. Ankush, I'm good. Thank you. Hello to Mayank. Hello everyone. Thanks again for joining and I truly appreciate you all coming. आप आते हैं हर evening में और this is the only time मैं आपसे बात कर सकती हूँ क्योंकि इसके बाद जो time होता है वो guest का होता है and I prefer कि मैं guest के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूँ. कुरसत, okay, that's a very unusual name I must say. बहुत ही अलग नाम है आपका. Thank you very much अंकुश. और इसका मतलब भी बता दीजिए कुरसत जी, क्या मतलब होता है इसका? बहुत अलग नाम है आपका. हेलो धनकी, नरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कॉम्प्लीमेंट्स. बहुत अच्छा लगता है जब आप बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं. हेलो हसन जी. Oh, you are from Turkey. Oh, that's nice. Oh, finally Vikrant is here, so now we can add him. Nice. Okay, you are giving that love from Dubai. Thank you very much. Thank you to all of you. Dubai और Turkey से मुझे बहुत सारा प्यार. Hello, hi Vikrant, how are you? I am fine, thank you. So What about you? I am good too. I was just waiting for you. तो आप नहीं आए तो मैं अपने जितने भी लोग आ गए थे ऑनलाइन, मैं उनसे बातें कर रही थी. बहुत मजा आ रहा था. Good. Okay. So you tell me कैसा जा रहा है आपका लॉकडाउन? क्या आप कुछ नया कर रहे हैं आप? जैसे कि we got to know that you started your career as a fitness celebrity fitness instructor. तो I'm sure कि fitness के ऊपर तो ध्यान दे ही रहे होंगे आप इस लॉकडाउन में. उसके अलावा आपने क्या नया किया ये बताइए, जो पहले आप शायद नहीं कर पाते थे या कुछ नई चीजें आपने ट्राई की इस लॉकडाउन में? जी, लॉकडाउन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है हम सबको. स्पेशली जो मैरिड है उनके लिए, क्योंकि मैं लॉकडाउन के बाद मैं अपनी वाइफ को ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा हूँ क्योंकि मैं बाहर ट्रैवलिंग करता था तो मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता था वो घर पे है तो क्या काम रहेगा. कर रही है. लेकिन जब मैं घर पे रहा लॉकडाउन में मुझे समझ में आया कि बाप रे बाप, बहुत ज्यादा काम रहता है. मुझे समझ में आ रहा है कि आपको शायद खाना भी बनाना पड़ रहा होगा या घर के काम करने पड़ रहे होंगे, तो आपको समझ में आ रहा है बिकॉज दैट इज अ जनरल सिनारियो. ऐसा हर कोई सोचते हैं. हम कोई अगर जोक्स भी सुनते हैं पढ़ते हैं तो यही होता है, तो बोलते हैं घर में तो बैठे है, क्या काम कर रहे हो, कोई काम ही नहीं है. बट जब आप खुद घर में होते हो तब आपको जैसे बोलते हैं ना, नानी दादी सब याद आ जाती है. सब याद आ जाती है और एक रिस्पेक्ट और बढ़ गई है.
that's very nice. You know, I really love that, you know, word कि आपने like you know एक I think बहुत सारी लोगों के अंदर like you know बहुत सारी चीजें हैं जिसे बोलते हैं ना चेंजेस जो आए हैं इस लॉकडाउन में, बहुत ही प्यारे प्यारे चेंजेस आए हैं। और आपने भी ये जो रिस्पेक्ट बढ़ाई है अपनी वाइफ के लिए, आई एम रियली हैप्पी कि ऐसे, आई होप बहुत सारे लोगों ने अगर ऐसा सेम किया, और जो जोक्स हैं वो थोड़े बनने कम हो जाए वाइफ्स के ऊपर। डेफिनेटली। ओके, सो आपने क्या क्या किया, लाइक झाड़ू पोछा तक सीमित थे या आपने खाना भी बनाया? नहीं नहीं, खाना तो नहीं बनाया मैं, क्योंकि ओके खाना बनाने की नौबत नहीं आई। लेकिन मैंने ओके चाय चाय बनाई, कॉफी बनाया, और अंडे घर पे वाले? जो भी जितना, हाँ, अंडे 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 जो बेसिक चीज है वो मैंने ओके किया। ओके ग्रेट। ओके, सो लाइक यू नो आपने बेसिकली फैमिली के साथ काफी टाइम स्पेंड किया, विच वाज वेरी जी इंपॉर्टेंट। जी जैसे आपने जी बोला कि जी पहले आप ट्रैवलिंग करते थे और यू नो आपने जी। फिटनेस के ऊपर भी अपना ध्यान दिया। सो यू नो लेट्स टॉक अबाउट फिटनेस ओनली। यू स्टार्टेड राइट ऑफ लाइक एज अ सेलिब्रिटी फिटनेस इंस्ट्रक्टर और आपने जॉन राइट। अब्राहम के साथ काम किया था। दैट्स रियली अमेजिंग। और लाइक किन किन, कहाँ से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई, कैसे, यू नो थोड़ा सा हमें बताइए। जी, बेसिकली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश से। हम्म और हम्म वहाँ पे एक हिल स्टेशन है जिसका शायद आपने नाम सुना नहीं होगा, बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा। उसका जी नाम है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा नाम जी है। जी, बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है मैंने। जी जी जी। तो मैं जी वहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ पे हुआ। ओके और जब मैं बॉम्बे आया, ओके मैं शुरू से ही, मैं जब 15-16 साल का था, तब से ही मुझे बहुत शौक था। स्कूल के साइड से मैं पावर लिफ्टिंग करता था, जिम में बहुत ज्यादा मुझे शौक ओह था। वाओ और ओके जब मैं बॉम्बे आया, तो मुझे हम्म एक ही चीज थी कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो हम्म फिटनेस के लिए ही कुछ करूंगा। और ओके मैं बॉम्बे में बहुत बड़ा, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट जिम था जिसका नाम जैप है, जहाँ पे जॉन अब्राहम, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स सब वहीं पे राइट आते थे। अब बहुत सारे जिम खुल राइट गए हैं। तो मैं जब राइट वहां पे मैं ज्वाइन किया, तो मैं जॉन अब्राहम जी को मैं ट्रेन करता था। और दया नायक जी थे, और भी बहुत सारे एक्टर्स वहां पे आते थे, सेलिब्रिटीज ओके बड़े बड़े, तो मैं उनको ट्रेन ओके करता था। और वो ट्रेनिंग के दौरान ही एक फैशन डिजाइनर थी, उन्हें बोला कि विक्रांत, ओके तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम अच्छे दिखते हो, तुम राइट एक मॉडल मेरा मिसिंग है, क्या तुम रैंप पे चलोगे? तो मैंने बोला, मैडम, वो रैंप, क्योंकि मुझे नहीं वाओ पता था मॉडलिंग के बारे वाओ में, रैंप क्या होता है। या और या वहां से ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। और ओके और मैं वहां से फिर मैंने मॉडलिंग किया। फिर मुझे फर्स्ट एड मिला था गुरमीत चौधरी, जो खामोशी में यस अभी यस है। यस वी नो उनका यस भी ओके पहला ऐड था, हम दोनों ने साथ में ऐड किया वाओ था, मेट्रो वाओ टायर का। तो ओह ओके अभी कुछ टाइम पहले मैं गुरमीत, जब हम लोग मिले, तो मैं उनको बताया, तो वो बहुत हंस रहे थे, क्योंकि उनका भी स्ट्रगलिंग पॉइंट वो था। हम राइट दोनों को 500 रुपए मिला था उस एड में। तो हम लोग एक्चुअली यू शेयर नो करके। या बिकॉज जब ऐसे सोचते हैं, कई 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 बार तो फ्री में भी काम करना पड़ता है, बिकॉज हाँ यू नो जी 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 इनिशियल जी, टाइम ऐसा बहुत होता है बार और होता आप, है जी, बिकॉज और आपको वो लगता भी है कुछ एमपी अच्छा से, मिल रहा है। अच्छा यस, वो भी वो भी एमपी एमपी से, से। जबलपुर से जी थे वो। जी, तो तो भाई तो भाई उनके कनेक्शन पास, हो गया था वहां पे। जी जी जी, उनके पास बाइक थी, तो उस बाइक में ओके आना जाना कैसा। या और ओके तो हम लोग ने किया, और आज वो ओके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम सो वेरी हैप्पी ट्रू कि या ही इज या डूइंग सो वेल। या या लेकिन और वैसे बहुत सारे, जैसे जॉन इब्राहिम जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। ही इज राइट वेरी वेरी हम्बल, और बहुत या मेहनती या हैं। और या तो कभी बहुत आप उसके बहुत। बाद मिले उनके साथ, लाइक यू नो कभी कभी ऐसा मौका मिला, जैसे आप गुरमीत जी से मिले, कभी ऐसा मौका मिला कि आप जॉन अब्राहम से भी मिले बाद में और आपने बताया कि मैं आपको ट्रेन किया करता था, ऐसा कुछ नहीं आपके नहीं, साथ उनको वाकई हुआ? देखिए, उनसे बहुत फैमिली जैसा मेरा रिलेशन है, क्योंकि मैं एक ओके प्रेयर ग्रुप में जाता हूँ, जहाँ पे उनकी मम्मी ओके मेरे साथ ही जाती हैं। ओके और ओके तो ओके मैं उनके घर पे आना जाना, अभी भी मेरा ओके बहुत अच्छा उनसे कनेक्शन है। ओके और लेकिन मैंने उनसे कभी ये जिक्र नहीं किया कि ब्रदर, आप आज इतने बड़े स्टार हैं, और आपका प्रोडक्शन हाउस है, मुझे रोल दीजिए, ब्रेक दीजिए, या काम दीजिए। मैंने कभी या उस बारे में कभी मैंने उनसे जिक्र नहीं किया। नहीं और नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज कि उनको याद है क्या कि आप उनको ट्रेन किया करते थे? यस 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 यस, ओके एक दिन क्या ओह हुआ कि वाओ मैं दैट्स नाइस या कुछ साल पहले, या मैं अपनी, मेरे पास बुलेट है, मैं, उनको भी टू व्हीलर का जी बहुत शौक है, मुझे भी बहुत शौक या है। या तो मैं अपनी या बुलेट से जा रहा था, तो उन्हें वो देखा, मैं विदाउट हेलमेट था, तो उन्हें मुझे दूर हाँ से देखा। तो हाँ वो अपनी गाड़ी पे जा रहे थे, उन्हें आगे जाके गाड़ी रोका, और उतरे गाड़ी हाँ से, बोलते हैं, विक्रांत, वेयर इज योर हेलमेट? तो उनका फर्स्ट वही था कि ओह बिना हेलमेट के तू बाइक क्यों चला रहा है? ओके तो ओके, सो ही और रिकॉग्नाइज्ड यू, ओके या ओके या 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 तो या वेनेवर ओके वेनेवर वेलकम बैक में भी हम लोग मिले थे एक फंक्शन ओके में।
तो उन्होंने मुझे दूर जी। से देखे, ही कम एंड ही हग्ड मी एंड ऑल दैट, तो आई वेरी स्टिल नाइस, रिमेम्बर या एंड इट वेरी या स्वीट। या वेरी स्वीट, यू नो दैट्स अ जेस्चर, यू नो अगर आप ऐसे कभी लाइक यू नो, हम लोग ऐसा कई बार सोचते हैं कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, बट अगर यू नो वो हम्बल होते हैं तो बहुत एक अच्छी फील आती है दैट यू नो कि कितने हम्बल है, अभी भी कितने हम्बल हैं। सो यू नो, सो व्हेन यू हैड ऑल दिस, लाइक यू नो जब आपको ऑफर्स मिल रहे थे, आप जा रहे थे, तो तब आपकी जर्नी, लाइक तब आपने सोचा तो नहीं होगा कि यू नो, बिकॉज आपने तो जिम और अपने फिटनेस के उसमें ही सोचा था कि यू नो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, but you know suddenly you got basically a lot of you know offers for ad, और आपको दूसरे ऑफर्स मिलने लगे, तो आपने भी क्या वो जो आराम नगर के धक्के खाए हैं या फिर ऑडिशंस के धक्के खाए हैं, क्या 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 कुछ हुआ मैम करता था? मैम मैं जब जिम में मैं जॉब करता था तो मुझे जी मैंने एक तो मुझे जिम में ही मुझे एक एड मिला था जो मैं गुरमीत के साथ मैंने किया था। जी और जी उसके बाद फिर मुझे मैंने अपना पोर्टफोलियो निकाला और जी। वहीं पे एक फोटोग्राफर मिल गए थे मुझे जिम में, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा एक पोर्टफोलियो निकालता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री फोटो शूट ओके करते हैं। तो ओके। उन्हें मेरा फोटो शूट किया और राइट। तो मुझे बोला कि कास्टिंग डायरेक्टर से मिलो, तो मैं कास्टिंग डायरेक्टर से आदर्श नगर में बहुत जी, फेमस बहुत पुराना एक कैफे शिमला एक रेस्टोरेंट है थैंक यू छोटा सा। अभिषेक जी। ओके, या तो आई नो, यस। मैं जी वहां पे गया, किसी ने मुझे बोला कि कास्टिंग डायरेक्टर है, मेरा पोर्टफोलियो उनको दिया, मैंने बोला सर ये मेरा पोर्टफोलियो है। तो मैं जब जी मैं कास्टिंग डायरेक्टर के पास पहुंचा तो जी। वो मैं जब भी उनके पास जाता था वो कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कॉल करते थे और मेरा वहां पे जाना हुआ, उन्हें फोन लगाया, मैं वहां पे बैठा। जैसे ही आप, ऐसे होता है ना, जैसे ही आप पहुंचे तो एकदम से सलमान खान को कॉल लग जाता है, राइट। हाँ हाँ, तो ये या पहले इन्हें सनी देओल को लगाया, मेरा पोर्टफोलियो या हाथ में फोटो ऐसा देख के और फोन लगाया राइट। और सनी देओल को या स्पीकर में रखा, उन्हें स्पीकर में फोन में ओके। रखा। तो उनको वो बोल रहे हैं ओ कि पाजी वो लड़का हाँ मिल गया है जो आप बोल रहे थे ना कि आपको एक जरूरत है कास्टिंग के लिए, तो वो मिल हाँ गया है। हाँ तो सनी हाँ। देओल वहां से बोलते हैं भाई लेट मत कर, जल्दी से जल्दी उसको लेके आ जा, मेरे को उसको साइन करना, अरे कितने साल के बाद मुझे मिला है, तो उसको जितनी जल्दी हो सकता है उसको लेके आ जा, मैं उसको साइन हाँ करूंगा, तो वो जितना पैसा हाँ। मांगे उसको दूंगा, उसके वो मैं 3 पिक्चर के लिए साइन करना चाहता हूँ, तू जल्दी से उसको लेके आ जा, देर मत कर, मैं अपनी गाड़ी तुझे भेजता हूँ, ड्राइवर तुझे लेके आएगा, तो एक काम कर, आज तू उसके साथ टाइम स्पेंड कर, कल उसको लेके आ जाना ऑफिस। और मेरा मेरा मेरे बूथ बम आने लगे बैठ के कि मैंने बोला यार मैं बचपन में टीवी में देखता था सनी देओल स्पीकर में और मेरे लिए बोल रहा है, मैं बहुत खुश हो ओह गया। माय गॉड। तो कास्टिंग डायरेक्टर के साथ 4-5 लोग बैठे थे, तो मेरे को बोलते हैं कि बेटा कल अपन सनी देओल से मिलेंगे, अभी एक काम हाँ करो, ये 4-5 लोगों का जो है ना सुबह से शाम तक हम लोग सुबह से शाम तक वो लोग बैठते थे, सबका तो बिल राइट था लंबा चौड़ा कुछ 1500 रुपए का, उस राइट टाइम राइट 1500 की राइट बात है, राइट राइट तो राइट। 1500 रुपया का बिल था। तो मैंने हाँ वहां पे बिल भरा, तो मैंने मेरे को बोले कि देखिए सबसे पहले एक्टर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है बिल भरना कि पड़ता है। आपको ओके। बिल भरना सीखना है वहां पे। और मैं अच्छा। ऐसा मैंने बिल भरा मैंने, और फिर मैं वाह नेक्स्ट डे वाह गया वाह। उनको, तो मैंने बोला कि आपने बोला था कि सनी देओल जी से हम्म मीटिंग है, तो बोले कि सनी देओल जी अपना लोकेशन के लिए कहीं बाहर गए हैं, तो बोले हम्म। वो बोले कि मैं फोन करूंगा आपको। तो राइट मैं राइट। कुछ दिनों के बाद फिर मैं वापस गया, तो मेरे को बोले मेरा ये मोबाइल का बिल है 3 महीने का, मैंने बिल नहीं भरा, तुम जाओ ये बिल भर के आओ। तो मेरे पास जो भी सेविंग में लेके आया था, थोड़ा पैसा मेरा धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे। ओह माय कभी गॉड। कभी कभी भी मैं कभी मैं उनका या मोबाइल का बिल भरूं, कभी मैं उनका वहां पे ओह रेस्टोरेंट माय में जाता था, गॉड। उनका बिल भरता था। या और एक दिन मैं वहां पहुंचा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं दिन रात जब भी मेहनत आप जाता हूँ मुझसे सिर्फ पैसे मेहनत। खर्च करवाते रहते। एक दिन मैं जब या पहुंचा तो वो या वहाँ अमिताभ बच्चन जी स्पीकर में थे, अमिताभ अच्छा। बच्चन जी को उन्होंने फोन लगाया, अमिताभ बच्चन जी उनसे बात कर रहे हैं, अरे भाई साला मैं बोला देखो कब से कास्टिंग करने के लिए, भाई तू कास्टिंग नहीं कर रहा है, ये का, मेरे को एक नया चेहरा ये चाहिए, कास्टिंग वाले थे, एक नया। कॉमेडियन थे। हाँ ये स्पीकर में बात कर रहे हैं, स्पीकर में बात कर रहे हैं, ओके। और मैं सुन रहा हूँ। तो फिर मेरे को मैं सोचता हूँ आज अमिताभ से बात कर रहे हैं, कभी इनसे बात कर रहे हैं, कभी बड़े बड़े सनी सेलिब्रिटी देओल से। से, एक दिन क्या हुआ कि मैं बाहर निकला, उनका कुछ बिल भरने जा रहा था मैं, मोबाइल हाँ का बिल, जैसे मैं फिर बाहर से। निकला हाँ तो मैंने देखा कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट हाँ उनको वहां बाहर खड़ा होकर पेड़ के पास से कॉल करता था,
और वो मिमिक्री आर्टिस्ट का नाम उन्हें रखा, एक का कभी सलमान खान, किसी का रखा अमिताभ बच्चन, किसी का मिथुन दादा। मिथुन दादा। ये तो सही वो है। वो मिमिक्री कर करके बोलता था और मैं उनको पैसे देता रहता था, और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता था। मिथुन दादा माय बोलते थे, गॉड। ए जल्दी हाँ लेके आ, इसको मुझे हाँ। साइन करना है, मुझे जल्दी इसको साइन करना है, तो मैं आपको डिस्को कभी 2 ऐसा बना दी। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये ना हर बार ये बुलाते हैं पर आप जा नहीं पाते हैं और उससे पहले बिल आ जाता है? मतलब ये तो बहुत ही अमेजिंग और फनी स्टोरी बताई है जी आपने। जी, मतलब मैं नया था मैडम, और मेरे साथ मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे बहुत सारे जो लोग हैं, अपना हाँ। घर, मेरे कई पहचान वाले थे, वेरी उन्होंने ट्रू। अपना घर का, किसी ने घर गिरवी माय रख के आया, गॉड। किसी ने जमीन ओ बेच माय दिया, किसी गॉड। ने गाड़ी बेच दिया। और सीरियसली। ऐसे बहुत बहुत बट इंसिडेंट्स हुए। सीरियसली मतलब लोगों के पास कितना दिमाग होता है किसी को भी बेवकूफ बनाने का, जी ये जी हमेशा से मैं यही सोचती हूँ। और ये स्पेशली इन दिस फील्ड जहाँ पे बेचारे जो लोग इतने एस्पिरेशंस लेके आते हैं और उनको इस तरह से ठगा जाता है, और बहुत ही मतलब आई एम श्योर आपके अलावा और बहुत लोगों ने भी उनको बददुआएं बहुत दी लोगों होगी के साथ सारे। हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि जब हम लोग मिलते थे बोलते कि वो पिक्चर के या लिए, वो मैं बोलता मुझे कास्ट किया, बोलता नहीं, ये देखो हाँ एग्रीमेंट मुझे तो 10 लोग अच्छा खड़े, 10 के एग्रीमेंट भी पास होता है। एक ही रोल के ओ लिए एग्रीमेंट हो जाते थे, वाह, कंफर्मेशन एग्रीमेंट एक भी होता लेटर था। में, ये या कंफर्मेशन है, या ऐसा ऐसा करके हम सब एक या दूसरे को दिखाते थे, अरे मैं फाइनल, बोलता नहीं नहीं तू गलत है, ये देख मैं फाइनल हुआ, मैंने उनको मोबाइल खरीद के दिया, अरे ऐसा भाई मैंने घड़ी लेके दिया ऐसा उनको। ऐसा तो इंडियन रेलवेज में भी नहीं होता। इंडियन रेलवेज में भी सिर्फ दो ही लोग के पास एक टिकट होती है। यहाँ पे तो 10 लोगों के साथ सेम कंफर्मेशन होता है। हाँ मैम, बहुत बहुत होता है, लेकिन तो मतलब ये जैसे फाइनली। आपने वेलकम वेलकम बैक की बात बोली, मुझे वेलकम बैक का सीन याद आ गया, जो उदय शेट्टी वाला सीन था। उदय शेट्टी ने 3-4 लोग रखे थे और बताने के लिए मुझे वो सीन जी याद जी आ जी गया जी, कि ऐसे रियल में होता है मैम, रियल में या होता है। या तभी तभी फिल्मों में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। सो व्हाट वी राइट सी इन राइट। फिल्म्स आर लाइक 80% ट्रू काइंड ऑफ। यस। जी जी सो दिस इज रियली फनी इट। मतलब अच्छा हुआ आपने ये बताया। और जितने भी हमारे जो बडिंग एक्टर्स हैं या जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं या जो भी जाते हैं, दे कुड बी अवेयर कि ये सब चीजें अगर ऐसा हो तो बी अलर्ट। आपको हाँ जरूरी है कि समझना कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपका फायदा उठाएंगे। और डेफिनेटली स्पेशली मैम। या और या मैम सॉरी, मैं बोल रहा हूँ, मैं या बोल रहा प्लीज था टेल। कि जो जेन्यून लोग होते हैं, क्योंकि मैंने आगे काम किया फिर अच्छे लोगों के साथ, या वहां पे कोई या ऐसी बातें नहीं होती है, वो आपको देखते हैं और बोलेंगे कि हाँ ये कैरेक्टर को देखते हैं कि हाँ ये कैरेक्टर में सूट हो रहा है, या और या आपको फाइनल करेंगे। और ये जो एग्जैक्टली बोलते हैं कि एग्जैक्टली। कोई कास्टिंग काउच की बात करते हैं, कोई कोई या पैसे लेते हैं, जो वेरी ये सब ट्रू। बात करते हैं, वो उनकी पिक्चर कभी बनती नहीं है, कभी बनती नहीं है, हाँ। कहीं ना कहीं कभी वो नहीं आके बनती है उसमें पिक्चर। कभी नहीं बनती है। एग्जैक्टली। जी जी सो जी सो मूविंग ऑन, ये तो आपकी पूरी जर्नी में काफी इंटरेस्टिंग मतलब आपके साथ किस्से हुए हैं। तो अब हम कुछ किस्से जानना चाहेंगे आपके बचपन के। सो हाउ लाइक बिकॉज एज यू सेड आप हिल स्टेशन में पले बड़े, और बिकॉज जी आपका एक बहुत ही आपने अच्छे नेचर के पास बड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ना कुछ ऐसी मिस्चीवियस थिंग्स आपने अपने बचपन में जरूर करी होंगी। तो जी। व्हाट वी वांट टू नो कि क्या थी वो हरकतें जो आज भी जब व्हेन यू टॉक अबाउट दैट कि आपके चेहरे पे एक हंसी लेके आती है, खुशी लेके आती है। देखिए बार बार मैं खुशी का नाम ले रही हूँ। हाँ, जी वही खुशी बताइए। खुशी खुशी मेरे लाइफ में आने के बाद डबल खुशी आ गई मेरी जिंदगी में। ओके ग्रेट। और ये या बचपन की बात, ये बहुत सारे इंसिडेंट्स है, लेकिन उसमें से जी एक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जी कि जी मैं मुझे मेरे दोस्तों, हर हर बचपन में हर जी। हर लड़का हो या बच्चा अपने दोस्तों में ना कि दिखाना चाहता है कि देखो हाँ हाँ। मैं कुछ हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट। हाँ मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ मैं, मेरे हाँ अंदर कुछ सुपर पावर है, ये है। या तो मैं या क्या करता था कि मेरे जो एरिया, मेरा जो मोहल्ला था, वहां पे अगर कोई भी छोटा सा ऐसे सांप वाप निकलता था या कुछ, तो मैं जाके उसको वो प्लास्टिक की थैली में डाल के उसको पकड़ना, ये छोटा मोटा करता था। तो ये एक दिन क्या छोटा मोटा हुआ, था। ओ माय हाँ गॉड। नहीं, छोटे छोटे सांप होते थे, ओके पानी के सांप, ओके। या वाटर स्नेक, या तो मैं उसको या पकड़ता था। तो ओके। एक दिन क्या हुआ कि मेरे मेरे फ्रेंड के यहाँ एक सांप निकला, हम्म। उनके उनके एरिया में, उनके जो ओके। होता है ना मोहल्ले में। जी। तो सब लोग, उनके घर पे सांप निकला तो उन लोग, सब लोग भाग गए घर से, पूरा फैमिली निकल गया घर से, आठ ओके। दस लोग थे, सब खाली करके बाहर थे। और या आजू आई कैन बाजू इमेजिन। उनका उनका घर था, आजू बाजू बहुत सारे घर थे, तो सब लोग देख रहे। ओके। तो किसी ने या मुझे एक खबर पहुंचाया
कि अरे बोले अरे वो विक्की, मेरा घर का नाम विक्की है, तो बोले या विक्की, मुझे विक्की बोलते हैं, तो बोले अरे वो विक्की सांप पकड़ विक्की को लेता है, बुला लो, उसको हाँ उसको विक्की बुलाया को जाए। बुला लो, हाँ तो हाँ। मेरे को बोला गया कि अरे उसको वो सांप पकड़ना है, मेरे को बोला, तो मैंने बोला, मैं गया तो देखा सब 25 30 40 लोग बाहर खड़े सब। मैंने बोला क्या तुम लोग, मैंने बोला एक छोटा सा सांप नहीं पकड़ सकते, आप हाँ लोग को हाँ, दिमाग नहीं है, अरे इतने अरे सारे लोग अरे होके ये वो, मैं आपने बोला और करके जाके शेखी मैं पखार दी, ओके। मैं पूरा ऐसा करके अंदर घुसा। तो मैं सोचा कि अजगर छोटा सा होएगा। सांप होगा, तो मैं जैसे ही सांप को देखा, इतना सा पूंछ में ऐसा पकड़ने गया उसको, तो जब मैंने देखा, मैंने जब देखा तो यहाँ से लेके वहां तक वो 7 फीट का सांप था, वो 7 फीट अजगर का। होएगा वो, अजगर, ओ माय पता नहीं मुझे गॉड। कोबरा था कि क्या था, वो 7 फीट का, मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा ओ सांप माय देखा। गॉड। हाँ, और जैसे ही मैंने उस सांप को देखा, मेरे मेरे क्या? पसीने छूट गए, मेरे हालत खराब हो गई। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं बाहर जाके क्या बोलूंगा हाँ किस बेइज्जती हाँ हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ अरे इसने तो सांप को मारा नहीं, हाँ, पकड़ के नहीं लाया, अब राइट मैं क्या राइट करूं। राइट तो मेरा राइट। दिमाग उस टाइम मेरा दिमाग चला कि मेरे कुछ आदिवासी दोस्त थे जिनके साथ मैं खेलता था, तो हम्म, मैं पीछे के दरवाजे से गया, उनको पकड़ के लेके आया। ओके और ओके। मैंने जाने से पहले बोला आप लोग अंदर कोई नहीं आना, कि वो सांप कभी भी आके अटैक कर सकता, बहुत बड़ा सांप है। तो मैंने दरवाजा बंद किया, पीछे के दरवाजे से भागा, उनको हाँ, पकड़ के लाया। उन लोगों ने क्या राइट, किया, ऐसा उठाए, वो ट्राइबल्स थे, उन लोग पकड़ते, या सपेरे लोग या कैसे या पकड़ा, या। उन्हें सर को ऐसे 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 मारा 2 3 बार, उसको स्नेक को। हम्म, मैंने बोला क्या हुआ, बोलता है ये मर गया, इसको लेके जाओ। मैंने बोला देखो प्लीज तुम लोग ना, उनको 2 5 रुपए दिया, मैंने बोला पीछे के दरवाजे से चले जाओ ना। तो बोलते खड़े जाओ, और मैंने सांप लिया ऐसा ऐसा रख के, मैं बाहर आ गया। सब ताली बजा रहे, मेरे लिए हुटिंग वुटिंग कर वाह रहे। वाह, तो क्या मैंने उनको बात बोला है। कि तो मैंने बोला, सब बोल रहे अरे क्या आपने सांप मारा, ये मैंने बोला अरे यार सब प्लीज छोड़ो, ऐसा। वो हाँ घास केरोसिन ऑयल लेके आओ, उसको जला देते हाँ हैं, पता हाँ नहीं नाग है, नागिन है, बदला ले हाँ ले, कुछ हो जाए, हाँ तो हाँ बोले हाँ लेके आओ। हाँ तो मैंने हाँ उसको ऐसा फोल्ड करके नीचे रखा, और सब गांव के लोग ताली वाली बजा रहे। मैंने हाँ पेट्रोल लिया, ऐसा घासलेट जो होता है ऐसा डाला, हाँ और मैं हाँ डालते डालते सब लोग को ताली बजाना रुक गया। तो मैंने बोला ये हाँ। ताली बजाना क्यों रुक गया, सांप तो ऐसा मैं जाग जैसे ही गया। डाला, सांप मेरे पैर के बाद उठ के बैठ गया, मरा नहीं था वो। अब अब मैं झुका माचिस लगाने के लिए, और सांप ने ऐसा करके बड़ी आंखों से मेरे को देख रहा, मेरे हाथ में ओ माय माचिस, गॉड, मेरे ओ हाथ माय ऐसे ऐसे गॉड, ऐसे 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 कप रहे। ओ मैं माय जो गॉड, भागा वहां, सांप में जो भागा, फिर मैं कुछ महीने तक वो एरिया में नहीं गया। ओ और माय बहुत सारे गॉड, लोग ओ मुझे माय बोल रहे थे कि गॉड, सांप तुम्हारा बहुत दूर तक पीछा कर रहा था काटने के लिए। ओ माय गॉड, वो ओ माय मेरी गॉड, मेरी लाइफ ओ का माय एक वो गॉड। इंसिडेंट था। और दूसरा ये, मुझे ना काइट उड़ाने का बहुत शौक था, पतंग उड़ाने का। आप शाम की इतनी मतलब इतनी बात बता रहे हैं, ये मतलब कंधे पे रख के लाना और ये सब, मैं आपको बता दूं, मैं टीवी पे भी अगर सांप आता है तो मैं नहीं देख सकती, और आप जी इतनी जी। बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो, माय गॉड। ओके। नहीं नहीं, अभी अभी भी रिसेंटली मैं अभी दिल्ली में हूँ, रिसेंटली मेरे फ्रेंड क्या निकला था, तो मैंने जी, वो अभी वो इंसिडेंट से, वो भी आप सांप बहुत निकला, उसको बहादुर पकड़ लिया हैं, वो। आप बहुत बहादुर हैं, मैं बाप रे, आप जो नहीं स्टोरी बता रहे नहीं हैं मैं इमेजिन करने लग गई, लेकिन वो सांप ऐसे करके, ओ गॉड, बाप रे, मैं तो बेहोश ही हो जाती शायद। नहीं नहीं, आशा ओके। नहीं, क्या हुआ फिर, मैं जी मुझे ना काइट उड़ाने का शौक था, एक छोटा सा जी इंसिडेंट बता रहा हूँ। जी तो जी मैं जी, पतंग बताइए। उड़ाते उड़ाते, एक चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही थी, उड़ रहा था जी, छोटा सा बच्चा। हाँ वो गलती हाँ। से मेरे धागे से कट के वो उसका बच्चा मर गया। ओ, ओके कौवा था बच्चा, ओके। मैं छोटा था, हाँ मेरे को ध्यान नहीं, काइट के धागे हाँ। से बहुत जी लोगों को चोट लगती है, जी बहुत लोगों को नुकसान जी। होता है। तो हम्म वो क्या हुआ कि वो कौवे ने देख लिया कि ये हम्म। लड़के से मेरा बच्चा मरा। अब मैं जब भी घर से निकलता था, विश्वास कीजिए, वो ढूंढता था मेरे को। और मैं कहीं बाइक से जा रहा हूँ, साइकिल से जा रहा हूँ, वो ढूंढ ढूंढ के मेरे सर पे आके मार के जाता था मुझे। बहुत बहुत दिन तक मारता रहा मेरे को, बहुत बदला लिया उसने मुझे, ओ माय गॉड, बदला लिया। सीरियसली? बहुत ओ मारा मेरे माय को उसने, कहीं भी गॉड, आता था चोट मार के भाग जाता था ओ मुझे। माय गॉड, ये उसको तो मैं मालूम था इसने पहली मारा। बार, हाँ, रिवेंज ही स्टोरी, बेटा। कौवे की रिवेंज स्टोरी तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, कौवा जी भी जी रिवेंज जी, लेता है, मेरे साथ ओ ये माय गॉड, लिविंग एक्सपीरियंस जो मेरे लाइफ में ओ हुआ है, माय मेरे साथ गॉड। बहुत बदला लिया। मैं कहीं भी जाता था मारता था मेरे को, फिर वो पता नहीं किधर चले गया। माय गॉड, मतलब कि जो एक्सपीरियंस है तरह तरह के एनिमल्स के साथ अलग अलग है, ये बहुत, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुने, कभी भी नहीं, मतलब मैं मतलब मैं डेफिनेटली। बहुत ज्यादा नॉटी था, बहुत मस्ती करता जी था। और जी मेरे सब फ्रेंड्स ऐसे ही थे, सब वहां पे जो ट्राइबल्स बॉयज थे, उन लोग के जी, साथ मस्ती करना। ऑब्वियसली, या भैंस में आप, बैठ के घूमते थे हम यू लोग हैड पेड़ अ पे। वेरी रॉ चाइल्डहुड, जिसे बोलते हैं ना, एकदम बिंदास वाला चाइल्डहुड था आपका।
जी जी और जी जी। आपने तो, आपके पास आई एम श्योर बहुत सारे किस्से होंगे, बट हमारे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, बट यू नो बहुत मजा आ रहा था बिल्कुल। आपके साथ बात करके। अभी हम क्योंकि अभी और भी आपके साथ बात करनी है। जी लाइक यू नो देयर इज वन फॉलोअर ऑफ योर्स, आरती दुबे, शी वांट्स टू नो कि आपकी जो मूवी थी दोस्ती के साइड इफेक्ट, उसमें आपको काम करके कैसा लगा। सो यू नो जस्ट वन ऑफ द कमेंट्स दैट आई जस्ट टुक, तो ओके आप ही ओके। बताइए जी। हाँ, दोस्ती का साइड इफेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मेरे मेरे लाइफ का, क्योंकि मैं उसमें लीड जी कर रहा था। जी और बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सब उसमें सपना चौधरी जी ने डेब्यू किया था। जी और जुबेर थे, टीवी इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े एक्टर्स जी मेरे साथ थे। जी तो मुझे जी बहुत कुछ लोगों से मुझे सीखने को मिला। जी। और सबसे सबसे बड़ी बात कि सब लोगों ने मेरे रोल को बहुत अप्रिशिएट किया। तो ओके मुझे ओके बहुत अच्छा लगा, और दैट वाज वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर मी। ग्रेट। सो व्हाट आर यू लाइक, यू नो आने वाले आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, वेयर वी कैन सी यू इन फ्यूचर। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अब हम लोगों का जो ये बॉलीवुड है या टीवी इंडस्ट्री है ना, बहुत सारे टैलेंटेड लोग यहाँ पे है। लेकिन हम्म। यहाँ पे डेस्टिनी भी बहुत जरूरी है, ऊपर वाले का ब्लेसिंग और ऊपर वाले का वेरी हाथ ट्रू भी आपके वेरी ट्रू। साथ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन बोलते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में गॉडफादर की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं आपको जी बताना चाहता हूँ, अगर आप गॉड से कनेक्ट हो तो आपको राइट। गॉडफादर की जरूरत नहीं पड़ती है। वेरी ट्रू और वेरी ट्रू। या और मेरे साथ ऐसे ही हुआ हेलो कि इंदर मैं जी, बहुत हाउ शुरू आर यू। या या और मैं शुरू से ही गॉड से कनेक्ट रहा, और हर समय या मुझे ऊपर वाले ने मेरी मदद किया, क्योंकि मेरा गॉड या फादर कोई है नहीं इंडस्ट्री में, लेकिन गॉड है मेरे राइट। साथ। या और मैं नीरज बोरा जी के बारे में बताना चाहता हूँ। आप जानते होंगे, जी नीरज बोरा जी 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 एक्टर जी भी हैं, जी। और हेरा फेरी के उन्होंने डायरेक्टर थे। डायरेक्टर भी, जी 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 जी। तो मैंने उनके साथ पिक्चर साइन की थी, हेरा फेरी। आप अगर उस गूगल में आप देख सकते हैं, उनके साथ मेरा हेरा आर्टिकल भी फेरी आया। थ्री, मैंने हेरा फेरी थ्री। हेरा फेरी जी 3 मैंने साइन की है उनके साथ। जी जी और जी। लेकिन उनकी मैं वही बता रहा था, डेस्टिनी वाली बात है कि उनकी या डेथ हो गई। जी और मीडिया में आ गया था, और मैं बहुत पावरफुल रोल कर रहा था उसमें। पहले जॉन ओके इब्राहिम और अभिषेक बच्चन थे, फिर जी। अभी अभी अक्षय कुमार और कुमार, पुराना स्टार कास्ट है। पुराना स्टार तो मैं सुनील उसमें, शेट्टी। या हाँ, मैं उसमें एंटी हीरो का रोल प्ले कर रहा था। तो लेकिन अभी ग्रेट। भी एग्रीमेंट है, और लेट्स सी, शायद या मैं वो पिक्चर करूं। और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि नहीं नहीं, डेफिनेटली वी विश यू ऑल द बेस्ट, वी वांट टू सी यू इन दैट, यू नो जिस तरह से मतलब मैं तो आपको उसमें कॉमेडी रोल में ही देखना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से आप किस्से बताते हैं, यू नो हंस हंस जी के जी किसी इंसान का जिसे बोलते हैं ना पेट ही दर्द हो जाए। और मुझे ये समझ में आ गया होगा कि घर में आपने सबको एंटरटेन करके रखा होगा इस पूरे लॉकडाउन में। सबने आपके कुछ ना कुछ किस्से सुने होंगे, और बार बार भी सुने होंगे, तो भी बड़ा मजा आया होगा, बिकॉज जी जी जी। यू नो दिस वाज लाइक रियली हिलेरियस फॉर मी। So, you know, we wish you all the best. आप इसके अलावा you are a motivational speaker also, you know, you जी जी। take all these Zoom meetings and all to motivate people, and you राइट। know बहुत सारी चीजें आप इसमें भी करते हैं। So, you know, is there anything that you want to tell your fans, your followers? बहुत सारे लोग हैं जो अब बहुत बार लिख चुके हैं कि you know say something you know about that, you know कुछ अपने motivational उसके बारे में भी बोलिए। तो अभी हम उसको कर लेते हैं। फाइट क्लब फैबुलस मूवी है सर, आपको इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं सर, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। कोई टिप फॉर जिम, चलिए पहले इसका जिम का कोई टिप दे दीजिए अंकित गोलू जी को, उसके बाद हम बात करेंगे मोटिवेशनल की। ये जी जी। पहले जिम का मैं मोटिवेशन दे दीजिए, फिर नॉर्मल मोटिवेशन। फाइट क्लब मेरी पहली पिक्चर थी, जहाँ पे मैं जी मुझे सोहेल खान जी ने ब्रेक दिया था, पर मेरा छोटा सा जी रोल था। जी लेकिन जब मेरे मेरे एमपी में जब वो पिक्चर लगी थी, और जी मेरा रोल छोटा सा था, लेकिन लोगों ने बहुत जी अप्रिशिएट किया। जी तो वहां जी। से मुझे ऐसा लगा कि सब लोग इतना प्यार कर रहे हैं मुझे, पेपर्स में मेरा नाम आ रहा है, डेफिनेटली तो डेफिनेटली। मुझे करना चाहिए। इसलिए मैं जी। फाइट क्लब की थी। और उसके बाद फिर अभी लास्ट मेरी जो मूवी थी दोस्ती के साइड इफेक्ट थी। और जिम के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, लॉकडाउन में तो सबको प्रॉब्लम हुआ था, और मैं घर पे फ्री हैंड एक्सरसाइज करता था। मैं 10th फ्लोर में रहता हूँ, और मैं सीढ़ियों से 6 बार डेली ऊपर जाता था, नीचे आता था। 6 बार, 7 बार, 8 बार, ऐसा मैं 10th वर्कआउट फ्लोर करता से था। आप 6 बार जाते थे ऊपर नीचे, वेरी हाँ, ऊपर नाइस। नीचे ऊपर। ओके 6 to 8 टाइम में जाता था ओके मैंने। ओके। तो 60 to 80 फ्लोर हो जाता है ऐसे। जी जी। तो मैं एक्सरसाइज ऐसे करता हूँ, और फ्री हैंड हम लोगों को करना चाहिए। और फ्री हैंड, क्योंकि मैं वेट तो ट्रेनिंग इसको मैंने किया। फंक्शनल बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको फंक्शनल ट्रेनिंग बोलते हैं, isn't it? ये जो सीढ़ियों से ऊपर नीचे करना, जी यू जी नो जी, फंक्शनल फंक्शनल मैं फ्री हैंड पुशअप घर की बात कर रहा था।
कि जी, ओके, अगर हम लोग जिम नहीं अच्छा, जाते पुशअप्स, तो ओके, 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 फ्री ग्रेट, हैंड हम या, पुशअप्स कर सकते जी, हैं। और मैं जी, वेट ट्रेनिंग बहुत करता था, लेकिन ओके, वेट ट्रेनिंग ऐसा होता था कि अभी भी यूथ क्या होता है, जैसे मेरे से भी गलती हुआ था कि मैंने हम्म, 1-2 साल जिम छोड़ दिया एकदम से, मैं फिर जिम मैंने ज्वाइन किया, तो वापस मैं 50 किलो 100 किलो वेट उठाया, तो मेरा ओ, इंजरी हो गया। तो या, कभी भी किसी को देख के जो सालों से एक्सरसाइज कर हाँ, रहे हैं, अंकित जी उसको कॉपी स्पेशली मत आपके करिए, लिए, या, कि आप कोई सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई तो उसको देख के कि यार ये उठा सकते हो तो मैं क्यों कॉपी नहीं उठा मत सकता हूँ। करिए। आपने उठाए नहीं जी, तो प्रॉब्लम हो कुछ जाएगा, ना टिश्यू कुछ तो विश्यू क्या हो प्रॉब्लम जाएंगे। होगा जी। तो आप ध्यान रखिए इस चीज लाइट का। वेट कीजिए, जी, जी, लाइट वेट करना सो, चाहिए और मोर रेपिटेशन ओके, करना चाहिए। जी, सो जिम की तो टिप हो गया, अब मोटिवेशनल टिप भी कुछ दे दीजिए, अबाउट एनीथिंग दैट यू वांट टू से, योर फैंस, योर नहीं फॉलोअर्स, मैम, कुछ भी। मेरा नाम विक्रांत आनंद है, जैसे मैंने बोला है, आप बहुत सारे जी, लोग जानते हैं, जो नहीं जानते जी, उनको मैं बोल रहा हूँ। तो जी, मैं बाइबल बहुत पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे बाइबल से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। और स्पेशली वहां पे लिखा है कि योर बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। और फिल्म लाइन में जब मैं आया, तो बहुत हम्म, सारे मेरे फ्रेंड्स थे, बोलते थे थोड़ा सा दारू पी ले, थोड़ा सा सिगरेट पी हम्म, ले, थोड़ा सा। हम्म, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा बॉडी टेम्पल है, और वो जी, परमेश्वर का, गॉड का टेम्पल है। अगर मैं जी, सिगरेट पीऊंगा तो मैं तो पी रहा हूँ और गॉड को भी जी, पिला रहा हूँ। अगर मैं जी, ड्रिंक कर रहा हूँ, मैं तो पी रहा हूँ, गॉड को भी पिला रहा हूँ अंदर। जी, तो इसलिए जी, मैंने ये सब चीजें हाथ नहीं लगाया। और ओके, आप भी इस बात को ध्यान रखिए कि हम सबका बॉडी जो है, क्योंकि हम लोगों ने, ये गॉड ने हम लोगों को गिफ्ट किया है। वेरी ट्रू, और वेरी ट्रू, तो इसको हमको ध्यान देना चाहिए। और आप सबका बॉडी जो है वो टेम्पल ऑफ गॉड है। और वेरी आप ट्रू, ये सोचेंगे तो आप कभी भी कुछ गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी मुझे एक चीज बचपन से सिखाई, बिकॉज इन वेरी अर्ली एज आई लॉस्ट माई डैड। तो मुझे ओके, मेरी माँ ने कहा कि बेटा देखो, तुम लाइफ में पुलिस वाले बनो, ड्राइवर बनो, हम्म, कुछ भी बनोगे, लेकिन ये हम्म, सब बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो। तो मैं अच्छा कोशिश करता इंसान, हूँ कि अच्छा इंसान बनूं। और जितने भी यूथ हैं, आप लोग घर में बैठ के हम्म, सोचेंगे कि आपको यश राज से कॉल आएगा, या सलमान खान या, प्रोडक्शन से फोन आएगा, या, ऐसा नहीं होता या, है। या, मंजिल मिल जाती है यूं भटकते भटकते। गुमराह तो राइट, वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो मंजिल मिलती वेरी है, अगर ट्रू, आप भटकते भटकते चलेंगे तो आपको मंजिल मिलेगी। लेकिन आप घर डेफिनेटली में बैठे मिलेगी, रहेंगे, आप घर में बैठे बिल्कुल रहेंगे सही कि बोला मम्मी आपने, पापा तो हैं, मम्मी पापा हाँ, हैं, कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं, करेंगे। कब तक करेंगे, आपको भी एग्जैक्टली, निकलना है। आपको नहीं, निकलना है, और मेहनत करना आई थिंक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप लाइक मैं तो इस चीज को मानती हूँ दैट अगर यू आर द वन, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दे आर सपोज टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, एक एज के बाद दे आर सपोज टू डू दैट। नॉट पेरेंट्स आर नॉट लाइक इंडिया में आज भी ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स कितनी भी एज के हो जाते हैं, बच्चों को बैठ के खिला रहे हैं, बट आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग। और जी बच्चों जी को उस चीज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत जरूरी है, दे शुड टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, एंड ये जो आपकी मदर ने आपको सीख दी है, बहुत ही प्यारी सीख है। आई ऑलवेज बिलीव दैट बिफोर एनीबडी एल्स यू शुड बी अ गुड पर्सन, एंड जो अच्छे इंसान होते हैं, आई थिंक उनको ठोकर शायद हो सकता है ज्यादा खानी पड़े, बट दे रीच देयर जो उनका गोल जी होता जी है, वो वहां तक पहुंचते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं। बहुत अच्छी बात करी आपने, एंड पीपल आर सेइंग दैट यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर यूथ। आपके यू आर ग्रेट सर, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं आपको, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स लोग आपको दे रहे हैं। आई एम श्योर ये सारे आपसे किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, और आपकी बातें सुन के ये इंस्पायर होते हैं। सो कीप इंस्पायरिंग पीपल, कीप इंस्पायरिंग एवरीवन, जो भी आपके सामने है, हंसाते रहिए, इंस्पायर करते रहिए, और अपनी मंजिलें आप जरूर पाएंगे, डेफिनेटली। We want to see you achieve great heights in future. We want to see you do great films in future. And that's all my wish for you. And I hope you really enjoyed this interview. Because I thoroughly did. And बहुत मजा आया आपसे बात करके. Thank you for spending your time, and आपने अपना time निकाल के you spend it with us online. Thank you so much. थैंक यू सो मच आशा जी। और Yeah, डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और yeah. आप भी आने वाले, मैं मेरी शुभकामनाएं कि आने वाले दिनों में जॉन इब्राहिम, सलमान खान, अक्षय कुमार का इंटरव्यू आप ले, बड़े बड़े स्टार्स का। Yeah, और yeah, हम लोग surely, चाहते surely. हैं। Yeah, डेफिनेटली। yeah, yeah, definitely. Thank you so much. And for all the people, I just want to tell you that, this Chit Chat show is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustanka. Thank you very much for being with us and, watching this live. Thank you so much, Vikrant. Have a great day ahead. Bye-bye. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Yeah, bye-bye.